Hello student, are you having a question in how to make notes for judicial services examination? Because it's a very common question. So here, this is a video in which I'm going to give you some brief important points to discuss how you are going to make for notes. Please let me make it very clear to all the students. There is no straight jacket formula which can be fixed to all the students in equal form. कि आप ये सारे रूल्स को फॉलो कर लो, आपका नोट बेटर हो जाएगा या बेस्ट हो जाएगा. बट यस, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन. इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. It depends on the students' capacity to demarcate between long term and short term notes कि आप handy notes बनाते हो, कुछ detailed notes बनाते हो. And also it depends on the student कि in which state that student is giving priority. That is what. Another point is that the notes for the prelim examination and for the mains examination, there should be some kind of demarcation. But as I said, there are some rules which can be applied to all the student when you are going to make the notes. For especially, just let me make it very clear. Suppose that if you are the aspirant for judicial services examination, what kinds of approach you need to follow when you are going to make the notes? First thing, that if you have been enrolled in a particular institutions, if you are doing the self-study, one thing which is important that BERECT is the very important source. तो आप BERECT को अपने पास रखो. इसका मतलब जब भी आप डिसाइड करते हो कि मुझे नोट्स बनाने हैं, तो सबसे पहला काम आपको अपने पास नोट्स रखना है, विच में सबसे पहले BERECT. आफ्टर BERECT, if you have been served good content, good amount of the print material before you, या soft material before you, through your institution, through your college, through any other sources, you can also take all these things together. Now the question is, all of the things cannot be taken together. आपको उसमें से भी कुछ शॉर्टन करना है. आपको शॉर्टन करना है सिर्फ वो एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पर्पस से इंपॉर्टेंट है, राइट. सो इसके लिए आपको फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक you need to prefer for the purpose of prelim, to what to give in the priority for the purpose of mains, and how much content should be taken from these notes. For that purpose, you can take the help of your faculties in the institutions. If the teacher is giving you the information, the lecture on a particular subject, especially the teachers try to highlight you. वो आपको बताते हैं कि ये टॉपिक आपको प्रीलिम के लिए रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडेक्स बेस सफिशिएंट है, बट दीज आर द टॉपिक विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल हैव टू टेक इट फॉर द मेंस. एडिशनली माइट बी पॉसिबल कि वो सारे पॉइंट्स को आपसे डिस्कस ना भी करें, बट दे मे इंडिकेट विद यू. तो आपको क्लास नोट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसका मतलब हर चीज आपको प्रिंट मटेरियल में नहीं मिलती. आपको जो क्लास लेक्चर होता है, क्लास नोट्स होता है, आप उसको भी वैल्यूएबल एसेट मानो अपने नोट्स के लिए, आप उसको भी अपने पास रखो. देन फाइनली व्हेन यू मूव टुवर्ड योर होम, और अब आपको नोट्स बनाना है, कैसे बनाओगे? यू प्लीज मेक इट वेरी क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्रीलिम के लिए पढ़ रहे हो तो प्रीलिम के लिए सबसे इजी होता है नोट्स बनाना, जो कि आपका BERECT इंडेक्स होता है. सारे आप जितने भी कमीशंस ले लो, सभी नॉर्मली प्रीफर कर रहे हैं, वो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं. तो व्हाई डोंट यू प्रीफर फॉर द इंडेक्स? व्हाई शुड यू राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स ऑन डिफरेंट पेजेस, है ना, स्पेंडिंग लॉट ऑफ पेपर्स हियर. Just go through the index of the particular law. Suppose that you are having BERECT of Indian Evidence Act, right? So what you are going to do that under section 1, section 2, section 3, section 4, just go through these sections. Let me make it very clear. यहाँ पर हर सेक्शन से प्रीलिम में क्वेश्चन आता है. What kind of question? This fact is relevant under which section? तो वो ऑलरेडी आपको वहां दिया है. आपको इसमें करना क्या है, आपको उन सेक्शंस के सामने डिफरेंट कलर्स को यूज करते हुए उसी पर्टिकुलर सेक्शन के सामने इंडेक्स में क्या लिखना है. अगर उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन हुआ है, वहां पर उसी टाइम पुट करो. डेट ऑफ इन्फोर्समेंट उसी टाइम वहीं पुट करो इंडेक्स में. अगर कोई लैंडमार्क और रीसेंट जजमेंट है, ज्यादा नहीं, 1 या 2, आप उसको उसी इंडेक्स में अपने डिफरेंट कलर से मेंशन कर लो. Why I am saying so? क्योंकि जब आप प्रीलिम एग्जामिनेशन में हॉल से पहले बाहर होते हैं, आपको बहुत सारा कंटेंट नहीं होता आपके पास. यू जस्ट हैव द पतला सा BERECT. आप उसको जैसी इंडेक्स देखते हो, आपके सामने पूरा पिक्चर माइंड में आ जाता है, क्लास में आपके साथ क्या क्या डिस्कस हुआ. तो वो चीज एकदम आपके पास मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज होता है. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने इंडेक्स में मेंशन कर लो.
भले ही शॉर्ट में करो कि वो आपकी मेमोरी में रहे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एक तो आपका ये स्ट्रेटजी होता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन। ना जस्ट कम टू अदर काइंड ऑफ एस्पेक्ट, यू विल हैव टू कैटेगराइज योर मेंस नोट्स इन टू वेज। फर्स्ट दैट इज शॉर्ट हैंडी नोट्स, other that is detailed notes. When we talk about short and handy notes, it means to say अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको क्लास लेक्चर मिलता है, आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट मटेरियल अवेलेबल है, आपके पास अच्छी रेफरेंस बुक भी है, तो क्या सारा पढ़ना होता है? नहीं, आपको उसका नोट्स बनाना होता है दो तरीके से। एक आपका डिटेल नोट्स बनेगा जो कि क्लास में आपको ऑलरेडी बनवाया जाता है, ठीक है, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है स्मार्टली, टू प्ले स्मार्टली, how to take less amount of time and give the lot of productivity, and that is possible only you will have to make a short brief note on a particular topic. Suppose that when I'm talking about that is res judicata, so you should make the definition, you should make that heading of res judicata. Try to make a brief content. Brief means to say comprehensive but in brief form all the important aspect of the res judicata into short form. कैसे करेंगे आप इसको? आप इंट्रोडक्शन डालेंगे, उसके बाद रेस जुडिकाटा के जो भी एसेंशियल्स हैं उनको ब्रीफ में लिखेंगे, लैंडमार्क रिसेंट केसेस लिखेंगे, प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन का कोई डिटेल शॉर्ट में लिखेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन द रेस जुडिकाटा, उन क्वेश्चंस को भी आपको माइंड में रखते हुए नोट्स बनाना होता है। दैट इज स्मॉल हैंडी क्रिस्प क्लियर नोट्स फॉर शॉर्ट हैंड, जो आपको एग्जाम में रिवाइज करना होता है। बाकी एक जो आप नोट्स बनाते हो, डिटेल्ड नोट्स बनाते हो, प्लीज लेट मी मेक इट क्लियर, जो आप डिटेल नोट्स डे टू डे बनाते हो, उन डिटेल नोट्स में भी अगर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ रिसेंट केसेस आ रहे हैं जो कि लैंडमार्क से को ही अप्रोच करते हैं या रिवर्स कराते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है उस पर्टिकुलर प्रोविजन पर, उसका कंटेंट आप अपने नोट्स में जरूर डालें। दैट इज माई पॉइंट इज कि नोट्स तो सबके नॉर्मल एक जैसे होंगे, बट आपका नोट्स डिफरेंट होगा, because the fact is that you have taken all the innovative recent updated material in your notes. That is what I'm talking about. So when you are making the notes, you must be very clear in your mind that whatever is provided in the class, whatever is given in the offline materials, even then your responsibility is to add some more thing. Some more thing means to say you will have to add on all the innovative development progressive approach which has been done right nowadays. So this is all which I'm talking about. So in conclude I want to say, अगर आप नोट्स बना रहे हो, जुडिशरी के नोट्स में आपकी वो सारे फैक्टर्स होने चाहिए। पहली चीज, आप इंडेक्स बेस्ड नोट्स बनाओ प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम एग्जामिनेशन। मेंस के लिए दो कैटेगरी करो, शॉर्ट हैंड नोट्स, डिटेल नोट्स। शॉर्ट हैंड नोट्स में हर टॉपिक, सारे वो टॉपिक्स नहीं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रेगुलरली मेंस में आ रहे हैं उन पर शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट ब्रीफ क्लियर, राइट, ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड हियर। अगर उसमें किसी और पर्टिकुलर लेजिस्लेशन से लिंक किया है वो आप प्रीलिम के इंडेक्स में भी जोड़ सकते हो और यहाँ पर भी। सपोज दैट एज आई सेड कि अगर आप सेक्शन 9, 10 एविडेंस बना रहे हो तो सीआरपीसी में, आईपीसी में अगर उससे कोई लिंक प्रोविजन है बेरक के इंडेक्स में, वही लिख लीजिए आप। दिस इज ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड फाइनली जो आप डिटेल्ड नोट्स बनाते हो उस डिटेल्ड नोट्स में लैंडमार्क और रिसेंट को ऐड ऑन करो। रिसेंट अगर आप 2023 का एग्जाम दे रहे हो तो 2023 में अगर कोई इंपॉर्टेंट केस है तो वो आपके नोट्स में होना चाहिए। दिस इज ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ओके।